Now we'll be dealing with CPC. So just understand one thing, that keep all of your apprehensions about CPC aside. CPC is a large code, but understand that CPC in certain aspects is very simple and straightforward. Yes, it does have some complex and conceptual aspects which has a certain level of depth. I'll be explaining them to you. But all in all, CPC is much simpler when you compare it to CRPC. So understand that CPC is nothing to be afraid of. It is fairly easy to understand if you show in the drive and you put in the effort. Alright, it is very essential that you put in the effort to understand the CPC, then the code becomes very easy. Now I'll be taking up all the conceptual aspects that are contained within CPC, and if I'm not taking up any of the sections, then understand that it is of only a superficial bare act level. Okay? That you can read yourself, because there are more than 848 provisions within CPC and we have to complete CPC within a designated time frame. So I'll be taking up the conceptual aspects of CPC, all of them. So immediately look at section 2 subsection 2, that is the definition of decree. It says decree means the formal expression of an adjudication which, so far as regards to the court expressing it, conclusively determines the right of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit, and may be either preliminary or final. It shall be deemed to include rejection of a plaint and determination of any question within section 144, but shall not include a. any adjudication from which appeal lies as an appeal from an order, or b. order for dismissal of default. Explanation: a decree is preliminary when further proceedings have to be taken before the suit can be completely disposed of. It is final when adjudication completely disposes of the suit. It may be partly preliminary or partly final. Now highlight the following terms in this definition: formal expression, adjudication, conclusively determines rights of the parties, matters in controversy in a suit, may be preliminary or final, includes rejection of the plaint and section 144, but not includes clause A and B. ठीक है, उसमें देख लीजिएगा, any adjudication from which appeal lies as an appeal to an order for dismissal of default. ये सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स में एज इट इज आते हैं और कभी कभी मेंस में एज इट इज आएंगे, तो एक्सपेक्ट करिएगा कि क्या क्या चीज़ें डिक्री में आती हैं और क्या क्या चीज़ें डिक्री में नहीं आती हैं. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ डिक्री. अब देखिए, एक डिक्री में एसेंशियल एलिमेंट्स ये होते हैं, 5 हैं मेनली. पहला, इट शुड बी एन एडजुडिकेशन. दूसरा, एडजुडिकेशन मस्ट हैव बीन डन इन अ सूट. तीसरा, it must have determined rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy. चौथा, such determination must be of a conclusive nature. और पांचवा, it should be a formal expression of adjudication. Now let me explain you the term adjudication. इसको बड़ी सिंपली तरीके से समझिएगा. एक चीज का ध्यान रखिए, फॉर अ डिसीजन ऑफ द कोर्ट टू बी अ डिक्री, एडजुडिकेशन इज वेरी एसेंशियल. एडजुडिकेशन का मतलब होता है अ जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ अ मैटर इन डिस्प्यूट. अगर किसी मैटर में जुडिशियल डिटर्मिनेशन नहीं हुआ है, देन सच एन ऑर्डर कैन नॉट बी कॉल्ड अ डिक्री. और अगर किसी मैटर पे मेरिट्स पे जुडिशियल डिटर्मिनेशन हुआ है, देन इट कैन बी सेड टू बी एन एडजुडिकेशन एंड हेंस अ डिक्री. ठीक है, इट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स. मैं टर्म एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको. तो देखिए, अगर किसी मैटर में डिपार्टमेंटल या एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी हो रही है और उसमें कोई ऑर्डर दिया गया है, देन इन दैट सिचुएशन इट वुड नॉट बी अ डिक्री, क्योंकि वहां पे एडजुडिकेशन गायब है. वो एडजुडिकेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरीज आर नॉट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. सिमिलरली, अगर सूट इस बात पे डिसमिस हो गया कि पार्टीज अपीयर नहीं किए हैं केस पे, मतलब सूट हैज बीन डिसमिस्ड फॉर डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज,
then in that situation it is not a decree because there has not been an adjudication. Similarly, if the appellate court has dismissed an appeal for want of prosecution, then it could not be said to be a decree because adjudication is missing there. तो एडजुडिकेशन का सिंपली मतलब क्या है कि जुडिशियल डिटर्मिनेशन किया जाना चाहिए कोर्ट के द्वारा, और इसमें कोर्ट होना भी बड़ा एसेंशियल है. अगर मान लीजिए किसी ऐसी अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया है जो कोर्ट नहीं है, तो उसका ऑर्डर डिक्री नहीं कहलाएगा. I hope you understand. Then that expression of adjudication would not be termed as decree if the officer who has given that particular formal expression is not a court. So keep that in mind. जुडिशियल डिटर्मिनेशन के एसेंस सिंपली इतना सा समझ लीजिए कि एडजुडिकेशन मींस दैट द कोर्ट हैज टू गो इनटू द मेरिट्स ऑफ द मैटर. ठीक है, अगर किसी भी मैटर इन डिस्प्यूट का प्रॉपर एडजुडिकेशन हुआ है, इट मींस द जुडिशियल ऑफिसर एंड द कोर्ट कंसर्न्ड एक्चुअली वेंट इनटू द मेरिट्स ऑफ द मैटर एंड डिसाइडेड द कंट्रोवर्सी इन वन वे और द अदर. देन इन दैट सिचुएशन दैट वुड बी कॉल्ड एन एडजुडिकेशन, अदरवाइज नॉट. ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अ डिसीजन ऑन द मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर, एन ऑर्डर डिसमिसिंग द सूट फॉर डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज or dismissing an appeal for want of prosecution are not termed as a decree because it does not judicially deal with the matter in dispute. Hence there is no adjudication, then that is why it is not called a decree. सिंपली जान लीजिएगा कि एडजुडिकेशन इम्प्लाइज दैट द कोर्ट वेंट्स इनटू द मेरिट ऑफ द मैटर. अगर सिर्फ इस बात के लिए मैटर डिसमिस हो जाता है कि पार्टीज अपीयर नहीं की हैं, तो इसका मतलब है कोर्ट मेरिट पे नहीं गया है, कोर्ट एक टेक्निकल रूल से कंप्लाई कर रहा है और उसके बेसिस पे डिसमिस कर रहा है. देन दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एन एडजुडिकेशन. ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, वो है कि सूट का मतलब क्या होता है. देखिए, ऑर्डिनरली सूट का मतलब होता है सिविल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट. ये मतलब होता है सूट का. तो इसका मतलब ये है कि सीपीसी आपसे कह रहा है कि सूट वही कहलाएगा जहां पे जो प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट हुई है, दैट इज बाय प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट. इसका ये मतलब निकलता है कि इफ देयर इज नो सूट देन देयर कैन नॉट बी अ डिक्री. ठीक है, और सूट क्या होता है, इट शुड बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट. ये जनरल डेफिनेशन है. तो मान लीजिए कि अगर कोई इंडिजेंट पर्सन जो है, he applies to the court, एक एप्लीकेशन कोर्ट को देता है for a permission to sue in the position of forma pauperis, मतलब as an indigent person. वो गरीब पर्सन है, he cannot afford the court fee और pleader fees etc etc. और वो चाहता है कि कोर्ट जो है उसको परमिशन दे दे to sue as an indigent person. तो मान लीजिए अगर वहां पे कोर्ट ने उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी to sue in forma pauperis, then that would not be termed as a decree, क्योंकि फॉर्मा पॉपरेस सूट में प्लेंट तब तक नहीं होती है जब तक वो एप्लीकेशन ग्रांट नहीं हो जाती. ठीक है, जब वो एप्लीकेशन एक बार ग्रांट कर दी कोर्ट ने कि यस यू हैव द परमिशन टू सू इन द पोजीशन ऑफ अ फॉर्मा पॉपरेस, ओनली देन दैट वुड ट्रांसफॉर्म इनटू अ प्लेंट, अदरवाइज नॉट. सो ऑलवेज रिमेंबर, रिजेक्शन of an application for leave to sue in the position of forma pauperis is not a decree. forma pauperis का मतलब क्या होता है, indigent person. कहाँ है इसके प्रोविजन, ऑर्डर 33 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड. अब एक चीज मैं बताता हूं कि कुछ इनैक्टमेंट्स हैं जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट, आर्बिट्रेशन एक्ट, इंडियन सेसेशन एक्ट. वहां पे जो एप्लीकेशन है उनको स्टैट्यूटरी सूट की तरह डील किया गया है और उनके अंदर के एडजुडिकेशंस को डिक्री माना गया है, डीम्ड डिक्रीज माना गया है. ठीक है, तो वहां पे तो लेजिस्लेचर कह रहा है कि वो सारी चीजें सूट मानी जाएंगी और उनका इफेक्ट डिक्री का होगा, वो बात अलग है. अभी वहां पे चीजें स्टैट्यूटरी सूट्स कहलाती हैं बिकॉज द लेजिस्लेचर हैज मैंडेटेड इट टू बी सो. लेकिन सीपीसी के पर्पस पे जब हम बात कर रहे हैं तो सीपीसी जनरली ये सोचती है कि कोई भी सूट जो कमेंस होगा वो कमेंस होगा बाय प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट. तो इन सारी बातों को इस बात से मत कंफ्यूज कर लीजिएगा कि आर्बिट्रेशन एक्ट में मैटर्स तो हो सकता है एप्लीकेशन से शुरू हो, या हिंदू मैरिज एक्ट में
प्रोसीडिंग एप्लीकेशन से शुरू हो या पेटिशन से शुरू हो, प्लेन से ना शुरू हो, उससे मत कंफ्यूज कर लीजिएगा, क्योंकि स्पेशल इनैक्टमेंट जब कुछ बोलती है तो उसको उसके स्पेशल सर्कमस्टेंसेस पे समझा जाता है। सीपीसी एक जनरल प्रोसीजरल लॉ है, तो जनरल प्रोसीजरल लॉ को हम एक जनरल सेंस में पहले समझते हैं और उसके बाद कोई स्पेशल स्टैट्यूट अगर कोई स्पेशल प्रोविजन बनाती है which goes in derogation of a general principle, then we take that special law in that special sense. ठीक है? So do not confuse the definitions of the CPC with the definitions that are contained within the special enactments. ठीक है? क्योंकि special enactments का एक अलग पर्पस है। तो ध्यान रखिएगा कि सीपीसी के जनरल पर्पस को आप किसी स्पेशल स्टैट्यूट के कंटेक्स्ट में कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए ट्राइब्यूनल कोई ऑर्डर पास करता है जिसको स्टैट्यूट कहती है कि ट्राइब्यूनल का ऑर्डर या फॉर्मल एक्सप्रेशन वुड बी ट्रीटेड एज अ डिक्री और इट वुड बी डीम्ड टू बी अ डिक्री, तो लेजिस्लेचर आपसे ये कह रहा है कि अफेक्ट उस ऑर्डर का ये होगा कि आप उसे डिक्री की तरह ट्रीट करिए, तभी वो कहता है डीम्ड डिक्री। उसका मतलब ये नहीं है कि ट्राइब्यूनल ने डिक्री पास की है, ठीक है। डीम्ड जब भी शब्द यूज होता है बाय द लेजिस्लेचर, इट मींस कि लेजिस्लेचर एक लीगल फिक्शन दे रहा है। इट इज सेइंग दैट यू ट्रीट समथिंग एज इफ इट वॉज समथिंग एल्स। आप किसी चीज को ऐसे ट्रीट करिए जैसे कि वो कुछ और हो, तभी वो एक्सप्रेशन डीम्ड यूज करता है। कभी भी आप डीमिंग फिक्शन देखेंगे किसी भी स्पेशल स्टैट्यूट में, वहां पे आप यही लाइन पाएंगे कि इट शैल बी डीम्ड टू बी अ डिक्री। लेजिस्लेचर शब्द डीम्ड हमेशा इसलिए लगाता है क्योंकि लेजिस्लेचर भी ये बात जानता है कि डिक्री तो कोर्ट तभी पास कर सकता है जब एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिक्री आर कंप्लाइड विद, ठीक है। And one of the essential elements of a decree is that it should have been given in a suit. सूट में होना चाहिए। तो लेजिस्लेचर को भी पता है कि कई प्रोसीडिंग ऐसी होती हैं जो पिटीशन या एप्लीकेशन के बेसिस पे होती हैं, सूट के बेसिस पे नहीं होती हैं। तो वहां पे लेजिस्लेचर स्पेशल एनैक्टमेंट में चाहे तो उनको डीम्ड डिक्री बना सकता है, बट वो एक डीमिंग फिक्शन है, ठीक है, वो एक डीमिंग फिक्शन कहलाता है। तो अगर कोई ट्राइब्यूनल या कोई भी कोर्ट किसी एप्लीकेशन के बेसिस पे विदाउट देयर बीइंग अ सूट एक ऐसा ऑर्डर पास करता है जिसको डीम्ड डिक्री का इफेक्ट दिया गया है, देन इन एक्चुअलिटी इज नॉट अ डिक्री फॉर द पर्पस ऑफ सीपीसी, इट हैज द इफेक्ट ऑफ डिक्री। ध्यान रखिएगा, हैविंग एन इफेक्ट ऑफ डिक्री एंड बीइंग अ डिक्री आर टोटली डिफरेंट थिंग्स, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। Having an effect of decree and being a decree are two different things. इसको एकदम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि deeming fiction is a different thing and being the original person is a different thing. Being the original concept is a different thing. तो CPC के पर्पस में जो भी चीजें आप सुन रहे हैं उनको क्या कहते हैं, स्पेशल स्टैट्यूट के कंसेप्ट से कंफ्यूज मत कर लीजिएगा, क्योंकि स्पेशल स्टैट्यूट्स हमेशा डीमिंग फिक्शन बनाती हैं। तो आप हो सकता है कि एक कंसेप्ट को उधर इक्वेट करने लगे, आप सोचे कि सूट तो प्लेंट से ही शुरू होता है, पर हिंदू मैरिज एक्ट में जो प्रोसीडिंग शुरू होती हैं वो पिटीशन या एप्लीकेशन पे हो सकती हैं और उनका भी अफेक्ट डिक्री का माना जाता है। वो कैसे? तो हमेशा ध्यान रखिएगा वो अफेक्ट डिक्री का होता है, इट इज अ डीमिंग फिक्शन, वो डिक्री एक्चुअलिटी में नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि केस इन पॉइंट लीजिए, दीवान ब्रदर्स वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 7 मई 1976 को डिसाइड हुआ था। इसमें ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को डिक्री माना जाए या नहीं उसको लेके एक सवाल था। अब स्टैट्यूट में लेजिस्लेचर ने लिख दिया था कि ट्राइब्यूनल के फाइनल ऑर्डर का जो इफेक्ट होगा वो डिक्री की तरह होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि डिक्री की डेफिनेशन देखी और सारी चीज़ें देखी और उसके बाद बोला कि जिस एक्ट ने ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश की है और जो स्पेशल ट्राइब्यूनल क्रिएट किया है, it has been established to inquire into claims of debtors and creditors. ट्राइब्यूनल पहली बात तो कोर्ट नहीं होता, सेकेंडली ट्राइब्यूनल्स में प्रोसीडिंग एप्लीकेशन से स्टार्ट होती हैं, प्लेन से नहीं स्टार्ट होती, और तीसरा लेजिस्लेचर हैज इटसेल्फ मेड अ क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन अ सूट एंड अ प्रोसीडिंग and has described the claim before the tribunal as a proceeding rather than a suit. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिक्री की कोई भी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं हो रही है, लेकिन लेजिस्लेचर ने स्पेशल स्टैट्यूट में क्या लिख दिया
कि ट्राइब्यूनल का जो डिसीजन होगा इट वुड हैव द इफेक्ट ऑफ अ डिक्री, डिक्री का प्रभाव होगा उसका। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इवन दो नन ऑफ द कंडीशंस ऑफ डिक्री आर बीइंग कंप्लाइड विद, येट द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल हैज एन इफेक्ट ऑफ अ डिक्री। वो इस सेंस में लेजिस्लेचर कह रहा है कि जो ट्राइब्यूनल का डिसीजन है वो फाइनल कहलाएगा, उसी सेंस में जैसे कि एक सिविल कोर्ट ने दे दिया होता तो, ठीक है, सिविल कोर्ट जैसे कि सीपीसी में। तो ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट भी इस बात पे क्लियर है कि डीम्ड डिक्री का इफेक्ट अलग होता है और डिक्री एकदम अलग चीज होती है। तो मेयरली बिकॉज स्पेशल स्टैट्यूट में आप ये लाइन देख लें कि देयर इज अ डीम्ड डिक्री या पर्टिकुलर डिसीजन विल हैव एन इफेक्ट ऑफ अ डिक्री, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्चुअलिटी में डिक्री है, इसका मतलब ये है कि उसको ट्रीट किया जाएगा जैसे कि वो डिक्री है, ठीक है। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसको बस ध्यान में रखने वाली बात है। अब थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं डिक्री के, राइट्स ऑफ द पार्टीज इन कंट्रोवर्सी। अब थर्ड पॉइंट में जो शब्द राइट का यूज हुआ है ये सब्सटेंशिव राइट्स की बात कर रहा है, ठीक है। इट इज टॉकिंग अबाउट द सब्सटेंशिव राइट्स। So, the rights of the parties inter se relating to status, limitation, right to appeal, jurisdiction, frame of suits, etc. are rights of the parties envisaged by these section. ये एक illustrative list है, exhaustive नहीं दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे right of the parties एक substantive law के concept से लिया गया है, not merely a procedural laws। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कोर्ट ने पार्टीज का सूट इस बात पे डिसमिस कर दिया कि पार्टीज आई नहीं, या इस बात पे सूट को डिसमिस कर दिया बिकॉज क्या कहते हैं देयर वाज अ वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन, या मान लीजिए एप्लीकेशन इस बात के लिए दी गई है फॉर अ परमिशन टू सू इन द पोजीशन ऑफ फॉर्मा पॉपरिस और एन इंडिजेंट पर्सन एंड द कोर्ट रिजेक्ट्स इट। ऐसे में प्रोसीजरल राइट्स हैं, सब्सटेंशिव राइट्स की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। तो डिफॉल्ट ऑफ अपीयरेंस में dismissal of the suit for the want of prosecution or an order refusing leave to sue in the position of the forma pauperis, these will not be within the expression of rights of the parties in controversy, ठीक है। ये merely procedural और technical rights हैं जिनको डिक्री के एम्बिट में एनविसेज नहीं किया जाता, ठीक है। सिमिलरली इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स या एप्लीकेशंस जो आपने कोर्ट में लगाई हैं फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस इन वन वे और द अदर, वो भी इस एक्सप्रेशन के बीच में नहीं आएंगी, राइट्स ऑफ द पार्टीज इन कंट्रोवर्सी, ठीक है। यहाँ पे राइट्स ऑफ द पार्टीज का मतलब सब्सटेंशियल राइट्स। अब मान लीजिए कि आप कहते हैं कि प्रॉपर्टी एक्स पे मेरा मालिकाना हक है, आई एम द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, और बी कहता है यू आर नॉट द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। नाउ हियर द सब्सटेंशिव राइट ऑफ दैट प्रॉपर्टी इज इन क्वेश्चन। दीज आर द राइट्स दैट द एक्सप्रेशन डिक्री इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। ये इन राइट्स इन कंट्रोवर्सीज की बात कर रहा है। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट मेयरली टेक्निकल और प्रोसीजरल राइट्स या इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स, उनकी बात नहीं कर रहा है ये बात कर रहा है एब्सोल्यूट सब्सटेंशिव राइट्स की। अब इसमें स्टेटस ऑफ द पार्टी भी आ जाता है कि पार्टी कौन सी पोजीशन में सू कर रही है, जूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट भी आ जाता है कि कोर्ट के पास जूरिसडिक्शन है उस मैटर में एडजुडिकेट कर पाने का या नहीं, अगर नहीं है तो वो डिक्री नहीं कहलाएगी। इसमें यह भी एक्सप्रेशन आ जाता है कि क्या सूट जो है वो मेंटेनेबल है एट द प्रेजेंट डेट और नॉट, ठीक है। ये सारी चीजें सब्सटेंशिव राइट के एस्पेक्ट्स में आ जाती हैं। And similarly, it is covered by the expression right of the parties in controversy. बस ध्यान रखिएगा इसमें interlocutory orders on the matters in procedure नहीं आते। वैसे ही इसमें ये भी नहीं आता an order for dismissal of default of appearance, an order dismissing an application for execution, for non-prosecution or want of prosecution, an order refusing leave to sue in the permission of forma pauperis or mere right to sue. These things are not decrees because they do not determine the right of the parties. Then I also hope you understand the expression parties to the suit. It merely means plaintiff and defendant, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी थर्ड पार्टी ने ऑन हिज एप्लीकेशन ऑर्डर ले लिया है एंड दैट थर्ड पार्टी इज अ स्ट्रेंजर टू द सूट, स्ट्रेंजर है,
तो ऐसा ऑर्डर वुड नॉट बी टर्म्ड एज अ डिक्री. ठीक है, वैसे तो ऑर्डर और डिक्री में अंतर ही होता है. ऑर्डर अलग चीज है और डिक्री एकदम अलग चीज है. लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं ये एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूँ इन ऑर्डर टू मेक यू कंफर्टेबल एंड मेक यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट मोर. अगर मान लीजिए किसी स्ट्रेंजर ने एक एप्लीकेशन पे कोई ऑर्डर ऑब्टेन कर लिया है, and such third party is neither the plaintiff nor the defendant. In that situation, such a formal expression of decision or such an order would not be termed as a decree because he is not the party to the suit. अब वैसे ही there has to be conclusive determination. ठीक है, determination should be of a conclusive nature. इसका क्या मतलब है? इसका सिंपली ये मतलब है कि डिटर्मिनेशन मस्ट बी फाइनल एज रिगार्ड्स टू द कोर्ट विच पासेस इट. फाइनल होना चाहिए, आखिरी होना चाहिए. ठीक है. सो एन इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर विच डज नॉट डिसाइड द राइट ऑफ द पार्टी फाइनली इज नॉट अ डिक्री. जैसे मान लीजिए कि कोर्ट जो है ऑर्डर ऑफ एडजर्नमेंट दे दे या रिफ्यूज कर दे ऑर्डर ऑफ एन एडजर्नमेंट. ठीक है, आपने एडजर्नमेंट मांगा, उसने रिफ्यूज कर दिया. ऐसे में दैट वुड नॉट बी अ डिक्री. उसको डिक्री नहीं बोला जाएगा. ठीक है, कि आपने एडजर्नमेंट मांगा, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो वो डिक्री कहलाएगी. नो, आपको ये समझने में आसानी हो रही होगी. वैसे ही अगर एडजर्नमेंट दे दिया देन इवन दैट इज नॉट अ डिक्री. वैसे ही मान लीजिए आप स्कैंडलस प्ली ऑफ डिफेंस ले रहे हैं, कोर्ट को लगता है कि जो आपने प्ली ली है वो स्कैंडलस है. इट स्ट्राइक्स आउट दैट पार्ट ऑफ योर डिफेंस इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन. जो भी उसके पास अथॉरिटी है उस अथॉरिटी के साथ वो आपको डिफेंस का वो पार्ट स्ट्राइक आउट कर देता है. तो ऐसी सिचुएशन में इवन दैट इज नॉट अ डिक्री, वो भी डिक्री नहीं कहलाएगा. अब मान लीजिए मैटर गए अपील पे, कोर्ट ने रिमांड पे भेज दिया. ठीक है, अपील पे मैटर गया, कोर्ट ने कुछ मैटर्स देखे और फिर लोअर कोर्ट को भेज दिया वापस कि आप इस केस को ऐसे देखिए. ये भी डिक्री नहीं है. और इन सारी चीजों में ये सब चीजें डिक्री क्यों नहीं है? सिर्फ एक रीजन है, because they are not deciding the rights of the parties conclusively. ठीक है, conclusive determination नहीं हो रहा है. that is why these are not decrees. एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि जो मेन पॉइंट जो कोर्ट इन सारी चीजों पे ध्यान देता है वो एसेंस पे देता है, सब्सटेंस पे देता है कि डिसीजन फाइनल या कंक्लूसिव इन इट्स एसेंस एंड इन इट्स सब्सटेंस है या नहीं. अगर वो है तो वो डिक्री कहलाएगा, अगर वो नहीं है तो वो डिक्री नहीं कहलाएगा. ठीक है, ये कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन के कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं. नेक्स्ट आ जाते हैं फॉर्मल एक्सप्रेशन की बात पे. व्हाट इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन? फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब है कि लॉ ने जो फॉर्म दिया है कि आप डिक्री कैसे ड्रॉ करेंगे, इट शुड बी कंप्लाइड विद इन दैट फॉर्म. ठीक है, तो अगर लॉ कहता है कि आप जजमेंट लिखेंगे, जजमेंट के बाद रीजंस लिखेंगे वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड, एंड देन यू विल ड्रॉ अप द डिक्री इन प्रॉपर फॉर्मेट, देन दैट इज कॉल्ड द फॉर्मल एक्सप्रेशन. ठीक है, उसी सेंस में फॉर्मल एक्सप्रेशन की बात हो रही है. एक एक्सप्रेशन अभी याद कर लीजिए, आगे काम आएगा. डिक्री ऑलवेज फॉलोज द जजमेंट. ठीक है, डिक्री फॉलोज द जजमेंट and must be drawn up separately. इस बात का ध्यान रखिएगा. Decree follows the judgment and must be drawn up separately. Judgment and decree are two different expressions. ये एक ही चीज नहीं होते. ये अलग बात है कि डिक्री हमेशा वही चीज फॉलो करती है जो जजमेंट में लिखा है, but these are not synonymous terms. And how is the decree drawn up? Decree is drawn up इन द टर्म्स ऑफ द जजमेंट. जो भी जजमेंट में रिलीफ प्रोवाइड कराई गई है, पार्टीज का नाम एसेट्रा एसेट्रा, वो सारी चीज डिक्री में लिखी होती हैं. जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिफिकेशन मैं आपको ऑर्डर 20 का रूल 6 और 6A पढ़ देता हूँ. रूल 6 कहता है ऑर्डर 20 का, द डिक्री शैल अग्री विद द जजमेंट, इट शैल कंटेन द नंबर ऑफ द सूट, द नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज, their registered address and the particulars of the claim, and shall specify clearly the relief granted or other determination of the suit. The decree shall also state the amount of cost incurred in the suit and by whom or by what property, in what proportion such costs are to be paid.
The court may direct that cost to be payable to one party by the other shall be set off against the sum which is admitted or found to be due from the former to the latter. ठीक है, डिक्री में ये कंटेंट्स होते हैं. ये कहाँ लिखा है? रूल 6 में ऑफ ऑर्डर 20. वैसे ही रूल 6 से कहता है, it talks about preparation of decree. It says every endeavor shall be made to ensure that the decree is drawn up expeditiously as possible, in any case within 15 days from the date on which judgment is pronounced. अब सब रूल 2 कहता है रूल 6A का कि any appeal may be preferred against a decree without filing a copy of the decree. In such a case, the copy made available to the party by the court shall for the purpose of rule 1 of order 41 be treated as a decree, but as soon as the decree is drawn, the judgment shall cease to have the effect of the decree for the purpose of execution or for any other purpose. ध्यान रखिएगा, डिक्री हमेशा ड्रॉ अप होगी इन ऑल सर्कमस्टेंस. किन्हीं सिचुएशन में अगर मान लीजिए डिक्री नहीं ड्रॉ अप हुई है एंड फॉर द पर्पस ऑफ अपील, अगर कोई पार्टी अपील करना चाहती है तो वो जजमेंट को एज अ डिक्री ट्रीट करके चैलेंज कर दे in the appellate court. But एक बार डिक्री ड्रॉ अप हो गई, then the decree has to be formally put on the record. हमेशा याद रखिएगा, appeals are from the decrees. ठीक है, in certain circumstances जहाँ पे डिक्री नहीं प्रिपेयर हुई है तो एक लिमिटेड पर्पस के लिए, वेरी लिमिटेड पर्पस के लिए जजमेंट को थोड़ा सा इफेक्ट दिया जाता है डिक्री के लिए in order to comply with the matters of appeal. लेकिन even then the decree will be drawn up. तो रूल 6 और 6A का ध्यान रखिएगा कि 6 में लिखा है कि कंटेंट्स क्या होंगे डिक्री के, और 6A में लिखा है कि डिक्री प्रिपेयर कैसे होगी, कितने टाइम में होगी. तो ऑर्डिनरली टाइम क्या है? 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड. ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट डिक्री शैल फॉलो द जजमेंट. ठीक है, डिक्री शैल फॉलो द जजमेंट. अब ऐसे आप फॉर्मल एक्सप्रेशन समझ गए होंगे. ऑर्डर 20 के रूल 6 और 6A के कंटेक्स्ट में बात हो रही है. व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय फॉर्मल एक्सप्रेशन? जो लॉ ने फॉर्म दिया है उसी से कंप्लायंस होगा. अब क्वेश्चन आता है कि टेस्ट क्या होना चाहिए, कि कोर्ट डिटरमाइन कैसे करेगा कि जो ऑर्डर, जो एक्सप्रेशन यूज हुआ है या जो फॉर्मल एक्सप्रेशन कोर्ट के पास है वो डिक्री है या नहीं. तो ऐसे पर्पस के लिए कोर्ट प्लीडिंग ऑफ द पार्टीज ध्यान में रखेगा, प्रोसीडिंग्स लीडिंग अप टू द पासिंग ऑफ द ऑर्डर, एंड देन इट विल सी वेदर इट कंप्लाइज विद द डेफिनेशन ऑफ डिक्री और नॉट. एंड फॉर दैट पर्पस द कोर्ट शैल हैव अ लुक एट द सब्सटेंस. ठीक है, एट द लुक एट द सब्सटेंस एंड द एसेंस ऑफ सच फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन. ठीक है, उसके सब्सटेंस और एसेंस पे मेन फोकस रखेगा. And for that purpose, court also considers the circumstances under which the order was made and the words were used in a particular context. ये सारी चीज़ों का कोर्ट ध्यान रखता है. तो क्या क्या आपको मिल गया? pleading of the parties, proceedings which led up to the passing of the order, and all the other surrounding circumstances, while having an emphasis on the substance of the formal expression of adjudication. अब इन चीज़ों को नोट करिए कि द फॉलोइंग आर हेल्ड टू बी डिक्रीज. फर्स्ट इज ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ द सूट. सेकेंड इज डिसमिसल ऑफ द अपील एज टाइम बार्ड. थर्ड इज डिसमिसल ऑफ सूट और अपील फॉर वांट ऑफ एविडेंस और प्रूफ. फोर्थ इज रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस. फिफ्थ इज granting or refusing to grant cost or installment. Sixth is modification of scheme under section 92 of the CPC. Seventh is order holding appeal not maintainable. Eighth is order holding that the right to sue does not survive. Ninth is order holding that there is no cause of action. And 10th, order refusing one of several reliefs are the decisions which are treated as decrees. Similarly, note down decisions which are not decrees. The following decisions are held not to be decrees. First, dismissal of appeal for default. Second,
appointment of commissioner to take accounts. Third, order of remand. Fourth, order granting or refusing to grant interim relief. Fifth, return of the plaint for presentation to proper court. Sixth, dismissal of suit under Order 23 Rule 1. Seventh, rejection of the application for condonation of delay. Eighth, order holding an application to be maintainable. Ninth, order refusing to set aside sale. 10th, order directing assessment of mean profits. मीन प्रॉफिट्स की स्पेलिंग है MESNE, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसको मैसने नहीं बोलते हैं, इसको मीन प्रॉफिट्स बोला जाता है, ठीक है। इट्स नॉट मैसने प्रॉफिट्स, इट्स मीन प्रॉफिट्स। अब जरा क्लासेस ऑफ डिक्रीज की बात कर लेते हैं। देखिए, डिक्रीज की 3 क्लासेस होती हैं, प्रिलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री या पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिक्री। अब देखिए, प्रिलिमिनरी डिक्री इज अ स्टेज प्रायर टू पासिंग ऑफ फाइनल डिक्री। अब जरूरी नहीं है कि हर केस में देयर हैज टू बी अ प्रिलिमिनरी डिक्री, किन्हीं किन्हीं केस में प्रिलिमिनरी डिक्री की जरूरत पड़ती है, जैसे सक्सेशन सूट्स में पड़ती है, पार्टीशन सूट्स में पड़ती है, वहां पे प्रिलिमिनरी डिक्रीज की जरूरत पड़ती है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सूट्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, फोरक्लोजर ऑफ अ मॉर्गेज, सेल ऑफ अ मॉर्गेज, रिडेम्पशन ऑफ अ मॉर्गेज, इन सारी सिचुएशन में प्रिलिमिनरी डिक्री की जरूरत पड़ती है। तो पार्टीशन का एग्जाम्पल लेता हूं, वो सबसे आसान होगा समझना। कि मान लीजिए एक सूट है, एक साइड पे ए है, दूसरी साइड पे BCD है, ठीक है। पार्टीशन सूट इनिशिएट किया गया है, कोर्ट एक ऑर्डर देता है कि यस द पार्टीज आर एंटाइटल्ड टू द पार्टीशन, ठीक है। अब ये प्रिलिमिनरी डिक्री होगी, दिस विल बी कॉल्ड द प्रिलिमिनरी डिक्री, कि कोर्ट ने ये बोल दिया यस यहाँ पे पार्टीशन होना है और पार्टीज के बीच में होना है। लेकिन अभी पार्टीशन बाय मीट्स एंड बाउंड्स नहीं हुआ है, कि मतलब जो प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट है उसको अभी कोर्ट ने ढंग से बांटा नहीं है, अभी सिर्फ यही डायरेक्शन दिया यस दैट द पार्टीज आर एंटाइटल्ड टू पार्टीशन। तो जब पार्टीशन बाय मीट्स एंड बाउंड्स होगा तो ऐसे में वो फाइनल डिक्री कहलाएगा, दैट वुड बी कॉल्ड व्हाट, फाइनल डिक्री, जब कोर्ट एक्चुअल में पार्टीशन करता है। एक तो पहले उसने बोला यस पार्टीज आर एंटाइटल्ड टू पार्टीशन, दैट वुड बी अ प्रिलिमिनरी डिक्री। After that, when the court actually conducts the partition in metes and bounds, मतलब प्रॉपर्टी को जब सच में वो विभाजित करेगा, जब वो बंटवारा करवाएगा कि ये शेयर आपके पास जाएगा, ये शेयर आपके पास जाएगा, then that would be the final decree. तो a preliminary decree is the one which declares the rights and liabilities of the parties, leaving the actual result to be worked out in the further proceedings. Then, as a result of further inquiries conducted pursuant to preliminary decree, the rights of the parties are fully determined and a decree is passed in accordance with such determination, that is final. Both decrees are passed in the same suit. A final decree may be final in 2 ways. First is when the time for appeal has expired without any appeal being preferred against the preliminary decree, or the matter has been decided by the High Court. And second is when, as regards to the court passing the decree, the same stands completely disposed of. It is in the second sense that the word decree has been used in section 2 subsection 2 of CPC, ठीक है। जो डिक्री का एक्सप्रेशन है वो इस सेंस में यूज किया गया है कि एज रिगार्ड्स टू द कोर्ट पासिंग द डिक्री द सेम स्टैंड्स कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ, द सूट स्टैंड्स कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक है। तो हालांकि फाइनल डिक्री को कहा जा सकता है लीगल पार्लेंस में कि वो तभी फाइनल होगी जब अपील का टाइम एक्सपायर हो जाए, या एपेलेट कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया हो मैटर, हाई कोर्ट ने कर दिया हो डिस्पोज ऑफ मैटर। बट सीपीसी के कंटेक्स्ट में जब बात हो रही है तो सीपीसी जो है वो उस कोर्ट के कंटेक्स्ट में बात कर रही है कि जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा मैटर डिस्पोज ऑफ हो चुका है, देन दैट वुड बी अ फाइनल डिक्री, ठीक है। वहां पे अब कुछ करने को नहीं बचा है एक्सेप्ट द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स करने के अलावा अब और कुछ करने को नहीं बचा है सूट में, देन इन दैट सिचुएशन दैट वुड बी द फाइनल डिक्री, ठीक है। अब ये जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूं, दोज वर सेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ शंकर वर्सेस चंद्रकांत। पूरा नाम है शंकर बलवंत लोखंडे वर्सेस चंद्रकांत
शंकर लोखंडे। तो शंकर वर्सेस चंद्रकांत याद कर लीजिए, काम चल जाएगा। इट वॉज डिसाइडेड ऑन 20 मार्च 1995। अब ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है। अब देखिए, सिविल प्रोसीजर जो कोड है वो ऑर्डर 20 के रूल 12 से लेके 18 तक बताता है कि कहाँ कहाँ आपको प्रिलिमिनरी डिक्री पास करनी ही होगी, ठीक है। तो उसमें आपके सूट फॉर पोजेशन एंड मीन प्रॉफिट है ऑर्डर 20 रूल 12 में, एडमिनिस्ट्रेशन सूट्स हैं ऑर्डर 20 रूल 13 में, सूट्स फॉर प्रीएम्पशन है ऑर्डर 20 रूल 14 में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के सूट्स हैं ऑर्डर 20 रूल 15 में, एसेट्रा एसेट्रा, यू कैन लुक इट अप। तो वहां पे कोर्ट्स आर मैंडेटेड टू पास अ प्रिलिमिनरी डिक्री एंड आफ्टर दैट पास अ फाइनल डिक्री। वैसे ही ऑर्डर 34 के रूल 2 एंड 3, ऑर्डर 34 का रूल 4 एंड 5, ऑर्डर 34 का रूल 7 एंड 8, वहां पे भी कोर्ट हैज टू पास अ प्रिलिमिनरी डिक्री फर्स्ट एंड देन अ फाइनल डिक्री। ये मॉर्गेजेस के मैटर से डील करता है। इन सारे ऑर्डर्स में ऑर्डर 34 के रूल 2 एंड 3 में फोरक्लोजर ऑफ द मॉर्गेज से डीलिंग है, ऑर्डर 34 के रूल 4 एंड 5 में सेल ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी से डीलिंग है, और ऑर्डर 34 के रूल 7 एंड 8 में रिडेम्पशन ऑफ द मॉर्गेज से डीलिंग है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि ये सारे जो बात बता रहा हूँ ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। कोर्ट किसी भी उस मैटर में प्रिलिमिनरी डिक्री पास कर सकता है जहां पे सीपीसी ने एक्सप्रेसली बताया भी ना हो। इट इज अप टू द कोर्ट वेदर टू पास अ प्रिलिमिनरी डिक्री और नॉट, ठीक है, इवन दो इट हैज नॉट बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय सीपीसी। तो जनरली बस ये ध्यान रखिएगा, जहां पे adjudication decides the right of the parties with regard to all or any other matters in controversy in the suit but does not completely dispose of the suit, then it is a preliminary decree, ठीक है। उसमें पार्टीशन वाला एग्जांपल ध्यान रखिएगा कि पार्टीशन में कोर्ट ने जहां बोल दिया यस पार्टीज आर एंटाइटल्ड टू पार्टीशन, इसका मतलब ये है कि जो राइट्स और कंट्रोवर्सी है वो डिटरमाइन कर दिया, लेकिन अब प्रॉपर्टी का एक्चुअल बंटवारा करने का ऑर्डर देना बाकी है। अब उसके लिए कोर्ट जो है कमिश्नर को अपॉइंट करेगा, कमिश्नर को भिजवाएगा, वो एक रिपोर्ट सबमिट करेगा, रिपोर्ट के सबमिशन के बाद कोर्ट देखेगा, ऑब्जेक्शंस एंटरटेन करेगा कि हाँ बराबर है, पार्टीशन का जो शेयर है वो सबके हिस्से में बराबर का आया है या नहीं इन कंटेक्स्ट ऑफ देयर राइट्स एंड लायबिलिटीज। और जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ जो बंटवारा कमिश्नर ने डिटरमाइन किया है वो प्रॉपर है, तो फाइनल डिक्री उसके इफेक्ट में पास कर देगा। वो मीट्स एंड बाउंड के पार्टीशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो वहां पे जो कंट्रोवर्सी थी वो खत्म हो गई थी प्रिलिमिनरी डिक्री में, ठीक, जहां पे कोर्ट ने बोल दिया कि ऑल पार्टीज आर एंटाइटल्ड टू पार्टीशन। लेकिन जब कोर्ट बोलता है कि यस देयर हैज टू बी अ फाइनल डिटर्मिनेशन, क्योंकि पार्टीशन ऑफ द प्रॉपर्टी तो एक्चुअल में करवाना बाकी है बाय मीट्स एंड बाउंड्स, तो किसके हिस्से में कितना शेयर जाएगा, अब ये जो मैटर है ये फाइनल डिक्री में डिटरमाइन होगा, ठीक है। एक बार फाइनल डिक्री आ गई उसके बाद एग्जीक्यूशन में लगाना है एंड एक्चुअल में पार्टीशन करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो फाइनल डिक्री और प्रिलिमिनरी डिक्री में अंतर ध्यान रखिएगा। Now understand कि a final decree is the one which completely disposes of the suit and finally settles all the question in controversy between the parties and nothing further remains to be done, ठीक है। अब आगे कुछ करना बाकी नहीं रह जाता। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि मान लीजिए कोर्ट ने गलती से ऑर्डर में लिख दिया या प्रिलिमिनरी डिक्री बोल के डिक्री पास की है बट कुछ आगे करने को बाकी नहीं रह गया है, ठीक है, नथिंग फर्दर रिमेन्स टू बी डन। तो ऐसे में जो डिक्री है, हालांकि उसको नाम प्रिलिमिनरी डिक्री दिया गया है पर वो सब्सटेंस में फाइनल डिक्री तब कहलाएगी। ऐसा कभी कभी हो सकता है कि जो कोर्ट है वो गलती से एक फाइनल डिक्री पास कर दे ये कह के कि प्रिलिमिनरी डिक्री है। देखिए हमेशा याद रखिएगा प्रिलिमिनरी डिक्री तब पास होती है व्हेन देयर इज समथिंग व्हिच इज टू बी डन, आगे भी, ठीक है। एक जगह कंट्रोवर्सी और राइट्स डिटरमाइन होंगे, उसके बाद देयर हैज टू बी समथिंग टू बी डन, दैट देयर आर सम मैटर्स इन कंट्रोवर्सी व्हिच आर लेफ्ट, दैट इज व्हाई फाइनल डिक्री इज ड्रॉन इन ऑर्डर टू सेटल ऑल द मैटर्स व्हिच आर लेफ्ट, ठीक है, जैसे पार्टीशन वाले सूट में मैंने आपको बताया था। लेकिन ये मान लीजिए कि कभी कभी ये भी हो सकता है कि कोर्ट जो है एक प्रिलिमिनरी डिक्री दे दे और आगे कुछ करने को बाकी नहीं है अब सूट में,
उसी प्रिलिमिनरी डिक्री ने सारी इंक्वायरी, सारी कंट्रोवर्सी और जितने भी मैटर्स थे सारे डिस्पोज ऑफ कर दिए, पर कोर्ट ने गलती से उसमें लिखा है प्रिलिमिनरी डिक्री। तो ध्यान रखिएगा, हालांकि इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ प्रिलिमिनरी डिक्री, हालांकि उसे बुलाया जा रहा है प्रिलिमिनरी डिक्री, वो एक्चुअलिटी में एक फाइनल डिक्री है, ठीक है। इन एक्चुअलिटी इट इज अ फाइनल डिक्री बिकॉज नथिंग फर्दर रिमेन्स टू बी डन। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मान लीजिए कि कोर्ट एक डिक्री पास करे और बोले कि एक पार्टी को मीन प्रॉफिट देने हैं एट अ सर्टेन रेट, उसके बाद पास्ट और फ्यूचर का मीन प्रॉफिट कैलकुलेट करके डिक्री में अमाउंट भी लिखवा दे कि ये अमाउंट पे करना है। तो एक जगह डिक्री में लिखा है कैलकुलेट करेंगे, दूसरी जगह जजेस ने अमाउंट लिख दिया है कि कितना मीन प्रॉफिट का अमाउंट होगा टोटल। तो ऐसे में नो कैलकुलेशन इज टू बी डन। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन में डिक्री को हालांकि प्रिलिमिनरी डिक्री बोला जा सकता है, लेकिन वो है एक्चुअलिटी में फाइनल डिक्री, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सब्सटेंस पे आपको ध्यान देना होता है, फॉर्म पे नहीं। क्या बुलाया जा रहा है डिक्री को वो मैटर नहीं करता, इट मैटर्स कि व्हाट इज द सब्सटेंस ऑफ द डिक्री, ठीक है। मैं एक बार फिर एग्जांपल रिपीट कर देता हूं कि मान लीजिए कोर्ट जो है इट पासेस अ डिक्री फॉर अ सम जिसमें पास्ट और फ्यूचर का मीन प्रॉफिट पे करना है कैलकुलेशन के बाद, ये डिक्री में लिखा है। पर जज ये लिखने के बाद साथ में ये भी अमाउंट लिख देता है कि मीन प्रॉफिट का पास्ट और फ्यूचर का टोटल का अमाउंट टोटल कैलकुलेट होके कितना होगा। जब उसने ये लिख दिया तो इट मींस नो फर्दर कैलकुलेशन रिमेन्स टू बी डन, क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुका है ना। तो ऐसे में डिक्री को हालांकि बोला गया है प्रिलिमिनरी डिक्री, पर वो है एक्चुअलिटी में क्या, फाइनल डिक्री। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक केस में एक से ज्यादा फाइनल डिक्री हो सकती हैं? देन द आंसर इज यस, हो सकती हैं। ये सेटल्ड लॉ है, इट वाज हेल्ड इन शंकर वर्सेस चंद्रकांत दैट मोर देन वन फाइनल डिक्री कैन बी पास्ड इन अ पर्टिकुलर सूट, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिक्री क्या होती है, ठीक है। देखिए, ऐसी भी डिक्री हो सकती है। अब इसका ये एग्जाम्पल होगा, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये होगा कि एक सूट फाइल किया गया है फॉर पोजेशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, साथ में उस सूट में ये भी डिमांड है फॉर द पेमेंट ऑफ ऑल द मीन प्रॉफिट्स, ठीक। कोर्ट एक डिक्री पास करता है, पहला फॉर द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, और साथ ही साथ उसी डिक्री में डायरेक्ट्स एन इंक्वायरी इनटू द मीन प्रॉफिट्स, ठीक है। एक ही डिक्री में वो लिखता है for possession of the property, for possession of that immovable property, and then directs an inquiry into the mean profit. तो जहां तक डिक्री का ये पार्ट है possession of the property, यहां पे डिक्री फाइनल है, दिस डिक्री इज फाइनल, ठीक है, क्योंकि वहां पे प्रॉपर्टी उसकी पोजेशन में आएगी, सो दिस पार्ट ऑफ द डिक्री इज फाइनल। लेकिन जहां पे डिक्री में ये है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मीन प्रॉफिट, तो वहां पे तो मीन प्रॉफिट कितना होगा ये तो कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा, इट मींस समथिंग फर्दर रिमेन्स टू बी डन। तो यहां पे ये है इसी डिक्री का प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट। इस केस में डिक्री हालांकि एक है, पर वो पार्टली प्रिलिमिनरी है और पार्टली फाइनल है। फाइनल वाला पार्ट क्या है मैं फिर रिइटरेट कर देता हूं, डिक्री फॉर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, और फिर उसी डिक्री में जो ये लाइन लिखी है इंक्वायरी इनटू द मीन प्रॉफिट, ये प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट है कि इस डिक्री के पर्सुएंस में इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद अमाउंट आएगा, फिर अमाउंट के बाद पता चलेगा कि कितना अमाउंट जजमेंट डेप्टर को पे करना है ना। सो दिस पार्ट इज द प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट। सो हालांकि इस केस में डिक्री एक है, वन पार्ट इज प्रिलिमिनरी, द अदर पार्ट इज फाइनल, ठीक है। अब आ जाते हैं डीम्ड डिक्री की बात पे। In Commissioner of Income Tax versus Bombay Trust Corporation, Privy Council stated one thing, that when a person is deemed to be something, that only means that he is not in reality that something. The act of the parliament or the legislature requires him to be treated as if he were. In other words, ये बोला जा रहा है कि जब act of the parliament या legislature बोलती है कि you deem a person to be something, ऐसे होता है ना, the children born as a result of a voidable or void marriage shall be deemed to be legitimate children. तो लॉ एक्चुअली ये कह रहा है कि हालांकि रियलिटी में वो लेजिटिमेट नहीं है, लेकिन उनका ट्रीटमेंट वैसे ही होगा जैसे कि वो लेजिटिमेट चिल्ड्रन होते,
ठीक। वैसे ही जो डीमिंग फिक्शन है लेजिस्लेचर का, चाहे वो डिक्री के लिए हो चाहे किसी भी चीज के लिए हो, डीमिंग फिक्शन ये होता है कि वो चीज रियलिटी में वो नहीं है जो लेजिस्लेचर कह रहा है उसको डीम करो। लेजिस्लेचर ये कह रहा है कि यू हैव टू डीम इट दैट थिंग, आपको उसे वो मानना पड़ेगा। तो उससे यही पता चलता है कि रियलिटी में वो चीज नहीं है। दैट इज व्हाट द प्राइवी काउंसिल इज ट्राइंग टू से, दैट व्हेन अ पर्सन इज डीम्ड टू बी समथिंग, the only meaning possible is that he is not in reality that something. The act of the parliament and the legislature requires him to be treated as if he were. Now why am I talking about deeming fiction? Because अब हम deem decree के topics पे आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि rejection of the plaint and the question of restitution have been treated as a deemed decree. वैसे ही adjudications under order 21 rule 58 and order 21 rule 98 and 100 are also deemed decrees, ठीक है। अब डीम्ड डिक्रीज का क्या मतलब है कि वो एक्चुअलिटी में तो डिक्री ना होती, पर लेजिस्लेचर ने एक फिक्शन बना दिया है कि उनको डिक्री माना जाएगा, ठीक है। जनरली रिजेक्शन ऑफ द प्लेन डिक्री नहीं माना जाता, पर लेजिस्लेचर ने कह दिया कि यू वुड ट्रीट इट एज अ डिक्री। वैसे ही क्वेश्चन ऑफ रेस्टिट्यूशन इज नॉट जनरली ट्रीटेड एज अ डिक्री, बट लेजिस्लेचर ने क्या कह दिया है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 2 में कि डिक्री की डेफिनेशन में रेस्टिट्यूशन के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सेक्शन 144 में कोई भी प्रोसीडिंग हुई दैट वुड बी ट्रीटेड एज अ व्हाट, अ डिक्री। वैसे ही रिजेक्शन ऑफ द प्लेन को कैसे ट्रीट करेंगे, एज अ डिक्री, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट हैज बीन ट्रीटेड एज अ डिक्री। अब रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट पे मैं थोड़ी बात करता हूँ। रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट को रिटर्न ऑफ द प्लेंट से कंस्ट्रू मत कर लीजिएगा। रिटर्न ऑफ द प्लेंट इज डिफरेंट थिंग। Return of the plaint is an appealable order, but rejection of a plaint is a deemed decree, ठीक है। Always remember, an order returning a plaint to be presented to the proper court is an appealable order, but an order rejecting a plaint is a deemed decree, ठीक है। एक और चीज का ध्यान रखिएगा कि रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट इज वन थिंग एंड डिसमिसल ऑफ द सूट इज अनदर थिंग। जब भी सूट की बात हो रही है तो सूट और अपील में आप रिजेक्शन की बात नहीं करते, वहां पे सूट और अपील या तो डिसमिस होगी या तो ग्रांट होगी, ठीक है। आप कभी भी कोर्ट का जजमेंट पढ़ते हैं, अपील देख रहे हैं या सूट देख रहे हैं, तो नीचे क्या लिखा होता है? अगर अपील का मैटर है तो लिखा जाता है अपील अलाउड या अपील ग्रांटेड, और अगर नहीं ग्रांट की अपील तो क्या लिखा जाता है? अपील हैज बीन डिसमिस्ड। तो सूट के भी कंटेक्स्ट में या अपील के कंटेक्स्ट में डिसमिसल होता है और प्लेंट के कंटेक्स्ट में रिजेक्शन होता है, ठीक है। डू नॉट से दैट द सूट हैज बीन रिजेक्टेड या डू नॉट से दैट द प्लेंट हैज बीन डिसमिस्ड। द प्लेंट इज रिजेक्टेड एंड द सूट इज डिसमिस्ड। ये दोनों अलग अलग चीजें, तो टर्मिनोलॉजीज पे बड़ी क्लियर रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, याद रखिएगा डिक्री के कंटेक्स्ट में कि डेफिनेशन ऑफ डिक्री में डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट नहीं आता है, ठीक है। It does not has dismissal of default within its ambit. इसी के ambit में dismissal of default में want of prosecution of a suit of appeal, default for non-appearance मतलब पार्टी आई नहीं कोर्ट में, और for any other reason। अगर dismiss हुआ है suit for default, चाहे वो one reason or the other, then that is not covered within the expression of decree. वैसे ही appealable orders are not covered within the expression decree, ठीक है। appealable orders are not covered within the expression decree. अब section 104 of CPC read with order 43 rule 1 of CPC tells you about that how many orders are there which are appealable. उसी कंटेक्स्ट में मैं बता रहा था कि जब प्लेंट रिटर्न होती है तो वो अपीलेबल ऑर्डर है, पर अगर प्लेन रिजेक्ट होती है तो वो डिक्री है। अब मान लीजिए आप गलत कोर्ट में प्लेंट इंस्टीट्यूट कर दें, कोर्ट बोलेगा कि इसको प्रॉपर कोर्ट में प्रेजेंट करना है और वो ऑर्डर फॉर रिटर्न ऑफ द प्लेंट देता है। ऐसे केस में द प्लेंट इज बीइंग रिटर्न्ड, ये एक अपीलेबल ऑर्डर है, यू कैन अपील अगेंस्ट दैट ऑर्डर।
अंडर ऑर्डर 43 रूल 1 उसमें एक लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन से ऑर्डर अवेलेबल है या नहीं, उसमें आपको मिल जाएगा। पर अगर कोर्ट रिजेक्ट कर देता है आपकी प्लेंट फॉर वन रीजन और दी अदर, तो वो डिक्री है, ठीक है। एक क्रूशियल डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है अपीलेबल ऑर्डर और डिक्री के कंटेक्स्ट में, कि डिक्री के कंटेक्स्ट में किन्हीं केसेस पे सेकेंड अपील भी हो सकती है इफ देयर इज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ टू बी डिसाइडेड, बट इन द केस ऑफ अपीलेबल ऑर्डर्स देयर आर नो सेकेंड अपील। अब यहीं पे जरा साथ ही साथ हम लोग जरा सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 देख लेते हैं, जहां पे ऑर्डर की मीनिंग बताई हुई है। ऑर्डर मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ द सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिक्री। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ द सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिक्री। तो यहाँ पे तो एक चीज होता है कि एक सूट में नंबर ऑफ द ऑर्डर पास हो सकते हैं, बट डिक्री जनरली एक ही पास होती है, ठीक है, और वो कंक्लूसिव इन नेचर होती है। ऑर्डर्स जनरली कंक्लूसिव इन नेचर नहीं होते। तो एक डिस्टिंक्शन नोट डाउन करिए ऑर्डर एंड डिक्री के बीच। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है और आता है। पहला है कि a decree can only be passed in a suit which is commenced by a presentation of plaint. An order may originate from a suit which has been commenced by a petition, application or by any other means. Order is not bound by the same rules. Order चाहे तो वो एप्लीकेशन से भी आ सकता है, सूट में भी आ सकता है, petition में भी आ सकता है, एप्लीकेशन में भी आ सकता है, ठीक है। Second is a decree is an adjudication conclusively determining the right of the parties with regard to all the matters in controversy. An order, on the other hand, may or may not finally determine the rights of the parties. Now, a decree may be preliminary or final, but an order cannot be preliminary. ठीक है, there is no such thing as a preliminary order. Next is, except in certain suits where two decrees, one preliminary or the other final is passed, उनको छोड़ के in generally every suit there is only one decree. But in case of a suit or proceedings, a number of the orders can be passed. Order के केस में a number of them can be passed in any suit or proceeding. बट जनरली डिक्री के केस में आपको एक ही डिक्री मिलती है। कुछ रेयर इंस्टेंस होते हैं जहाँ पे प्रिलिमिनरी और फाइनल डिक्री भी हो सकती है, या पार्टली प्रिलिमिनरी और फाइनल डिक्री भी हो सकती है, पार्टली फाइनल डिक्री, बट दैट इज एन एक्सेप्शन एंड यू शुड नो दैट एक्सेप्शंस डू नॉट ओवरराइड द नॉर्म। तो हम जनरल सेंस में जब बात करते हैं तो ये देखते हैं कि ऑर्डर एक केस में बहुत सारे हो सकते हैं, ऑर्डर एक सूट में बहुत सारे हो सकते हैं, पर जनरली डिक्री एक ही होती है, ठीक है। देन द नेक्स्ट डिफरेंस इज that every decree is appealable, but every order is not appealable. Only those orders are appealable which are specified in the code. कहाँ पे specified है? Section 104 of the CPC and Order 43 Rule 1. ठीक है? Section 104 of the CPC and Order 43 Rule 1. Next and the final difference between them is that a second appeal lies to the High Court if the decree has a substantial question of law to be decided. But in case of an appealable order, there is no such thing as a second appeal. Appealable orders में एक ही अपील होती है, second appeal जैसी कोई चीज नहीं होती, पर डिक्री में second appeal हो सकती है if there is a substantial question of law to be decided. ठीक है? अब जरा हम आ जाते हैं सेक्शन 2 के सबसेक्शन 3 पे, that is decree holder. Decree holder means any person in whose favor a decree has been passed and an order capable of execution has been made. तो ये तो समझना बहुत आसान है कि जिसके फेवर में डिक्री पास हो गई, बट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस दैट इन whose favor an order capable of execution has been made? इसका ये मतलब है कि कोड आपको बता रहा है कि डिक्री होल्डर नीड नॉट नेसेसरली बी द प्लेंटिफ। समझ रहे हैं? डिक्री होल्डर need not necessarily be the plaintiff. A person who is not a party to a suit but whose favor an order capable of execution has been passed is also the decree holder for the purpose of CPC. अब आपको एक illustration देता हूँ कि what do you understand by a person who is not party to the suit but in whose favor an order capable of execution has been made. तो देखिए ऐसा भी हो सकता है कि डिक्री किसी पर्सन को ट्रांसफर कर दी जाए इफ द डिक्री इज ट्रांसफरेबल।
या डिक्री अगर किसी को असाइन की जा सकती है एंड डिक्री इज असाइनेबल, तो हो सकता है ऐसे पर्सन को असाइन कर दी जाए। तो क्या होगा, अगर उसे डिक्री असाइन कर दी गई या ट्रांसफर कर दी गई तो क्या ऐसा कहा जाएगा कि भाई आप तो प्लेंटिव नहीं थे, आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते? नो, legislature in its wisdoms has envisaged these types of situations and has said that if there is a person who, even though is not a party to the suit, but in whose favor an order capable of execution can be passed, then he will also be called a decree holder. अब इस कंटेक्स्ट में ऑर्डर 21 का रूल 16 एक बार देखिएगा। मतलब देखिए, ये कॉम्प्लेक्स मत बनाइएगा अपने लिए, बस ऐसी जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब ऑर्डर 21 का रूल 16 कहता है कि वेयर अ डिक्री और इफ अ डिक्री हैज बीन पास जॉइंटली इन फेवर ऑफ 2 or more persons, the interest of any decree holder in the decree is transferred by assignment in writing or by operation of law. The transferee may apply for execution of a decree to the court which passed it, and decree may be executed in the same manner and subject to the same conditions as if the application was made by the decree holder. ठीक है, मोटा मोटा यही चीज का ध्यान रखिए। ये इसलिए बता रहा हूं कि आप ही के सामने ऑर्डर 21 का रूल 16 खुद कह रहा है कि ट्रांसफर भी एग्जीक्यूट कर सकता है डिक्री। तभी जो कोड है, सीपीसी जो है, वो आपको ये बता रहा है कि इफ अ पर्सन in whose favor a decree has been passed or an order capable of execution has been made, then he is also a decree holder. ठीक है, अब जैसे in a suit for specific performance, let us suppose the court passes a decree. ठीक, in a suit for specific performance and court passes a decree. Such a decree is capable of execution by both plaintiff as well as defendant. ठीक है, क्योंकि ऐसे केस में either party is a decree holder. क्योंकि अगर एक प्लेंटिफ कहेगा कि भाई मैंने तो अपने फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री ले ली पर मैं तुम्हें पेमेंट नहीं करूंगा, ऐसे में जो डिफेंडेंट है वो बोल सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म के हिसाब से तुम्हें डिक्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिली है और कॉन्ट्रैक्ट के टर्म में लिखा है कि तुम्हें मुझे इतना पेमेंट करना होगा। तो अगर मान लीजिए कि प्लेंटिफ रिफ्यूज कर जाए तो ऐसे में डिक्री होल्डर अपने पेमेंट के इंटरेस्ट के लिए उसी डिक्री को इन्फोर्स करवा सकता है इन द सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। याद रखिएगा, इन अ केस अ डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज पास्ड, such a decree is capable by execution both by plaintiff as well as defendant, and therefore either parties is a decree holder in that given context. Similarly, if a decree confers upon someone a right to execute a decree, then he is also a decree holder. ठीक है, लेकिन कुछ circumstances होते हैं जहां पे order might not be capable of execution till a certain time has been elapsed. तो इसके लिए एग्जाम्पल ले लीजिए लैंडलॉर्ड और टेनेंट का। अगर मान लीजिए एक एविक्शन ऑर्डर पास किया गया है और द कोर्ट हैज अलॉटेड टाइम टू द टेनेंट टू वेकेट द प्रेमिसेस, मान लीजिए 3 मंथ का टाइम दिया है, तो लैंडलॉर्ड 3 मंथ जब तक एक्सपायर नहीं हो जाते तब तक वो डिक्री होल्डर नहीं कहलाएगा, क्योंकि स्ट्रिक्ट सेंस में अभी उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है विच इज केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, क्योंकि 3 महीने का टाइम दिया गया टेनेंट को, अब 3 महीने के अंदर वो वेकेट कर जाता है तो डिग्री को एग्जीक्यूट करने की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन 3 महीने के बाद भी अगर वो वेकेट नहीं करता है प्रेमिसेस टेनेंट, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में द लैंडलॉर्ड नाउ हैज एन ऑर्डर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन और वो फिर डिक्री एग्जीक्यूट करवा सकता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर डिक्री कोई टर्म लगा रही है या कोई कंडीशन लगा रही है जिसके बाद वो ऑपरेटिव होगी, तो जब तक वो टर्म या कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती या जब तक वो पीरियड एक्सपायर नहीं हो जाता, तब तक इन स्ट्रिक्ट सेंस वो डिक्री अभी ऑपरेटिव नहीं कही जा सकती। ठीक है, बिकॉज टिल दैट टाइम दैट द पीरियड हैज बीन elapsed और द कंडीशन हैज बीन फुलफिल्ड, इट कैन नॉट बी सेड दैट द डिक्री इज केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन। ये एक प्रैक्टिकल पॉइंट आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये आपसे कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा ये, क्योंकि ये लेटर थोड़ी कॉम्प्लेक्स बात है और थोड़ी एडवांस बात है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा एक्सपोजर रहे इन सारी चीज़ों को लेके। वैसे ही सब सेक्शन 10 पे आ जाइएगा, सेक्शन 2 के, जो जजमेंट डेप्टर की बात करता है। जजमेंट डेप्टर का क्या मतलब है? मीन्स अ पर्सन अगेंस्ट हुम द डिक्री हैज बीन पास्ड और एन
order capable of execution has been made. तो मतलब डेफिनेशन में अंतर कितना हुआ है डिक्री होल्डर और जजमेंट डेप्टर का? सिर्फ इन और अगेंस्ट का. ठीक है, तो जिसके खिलाफ डिक्री पास हुई है या जिसके खिलाफ एन ऑर्डर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड हुआ है, वो पर्सन कौन है? जजमेंट डेप्टर. इन और अगेंस्ट का डिफरेंस ध्यान रखेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी. अब हम लोग आ जाते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन पे. सेक्शन 2 सबसेक्शन 11. It means a person who in law represents the estate of the deceased person and includes any person who intermeddles with the estate of the deceased, and where a party sues or is sued in a representative character the person on whom the estate devolves on the death of the party so suing or sued. ये है डेफिनेशन लीगल रिप्रेजेंटेटिव की. अब देखिए ये डेफिनेशन अपने स्कोप में बहुत वाइड है. ठीक है, तो पहले तो ये ध्यान रखिए कि कौन कौन लीगल रिप्रेजेंटेटिव के एम्बिट में आएगा. अब एग्जीक्यूटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, रिवर्जनर्स, हिंदू कोपासनर्स, रेसिड्यूरी लीगैलिटीज एसेट्रा, ये सारे तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है. बट कौन लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? अ ट्रेसपासर इज नॉट अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्योंकि he does not intermeddle with the intention of representing the estate of the deceased. Similarly, an executor decent tort, a succeeding trustee, official assignee or receiver is not a legal representative. अब मैं बताता हूँ क्यों. क्योंकि पहले तो एग्जीक्यूटेड डिसेंट टॉट क्या होता है ये जान लीजिए. एग्जीक्यूटेड डिसेंट टॉट इज अ पर्सन हु wrongfully interferes with the distribution of the डिसीज्ड पर्सन्स एस्टेट. ठीक है, वो जो रॉन्गफुली इंटरफियर करता है डिसीज्ड पर्सन के एस्टेट से, ही इज नॉट इंटरमेडलिंग राइटफुली, सो ही कैन नॉट बी सेड टू बी अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव. ठीक, फिर जो ट्रस्टी और ऑफिशियल अजाइनी है, ये स्टैट्यूट मैंडेट करती है कि ये ट्रस्टी और ऑफिशियल अजाइनी डू नॉट रिप्रेजेंट द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड पर्सन. रिसीवर जो होता है, रिसीवर किसका लॉन्ग आर्म होता है? रिसीवर रिप्रेजेंट्स द कोर्ट, नॉट द डिसीज्ड पार्टी. ठीक है, दैट इज व्हाई रिसीवर इज आल्सो नॉट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एस्टेट ऑफ विच ही इज द रिसीवर. ठीक, जब इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग होती है और ऑफिशियल अजाइनी इन्वॉल्व होता है, ऐसे में स्टैट्यूट प्रिस्क्राइब करती है कि द ऑफिशियल अजाइनी shall hold the property for the benefits of the creditors. ठीक है, वो इसलिए प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता बिकॉज ही इंटेंड्स टू रिप्रेजेंट इट ऑन बिहाफ ऑफ द डिसीज्ड पर्सन. वो स्टैट्यूट के अंदर कंप्लायंस करने के लिए प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है. ऑलवेज रिमेंबर इन जनरल टर्म्स ऑफिशियल असाइनी इज आइदर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट और इज अपॉइंटेड बाय द स्टैट्यूट टू डिस्ट्रीब्यूट अ बैंकरप्ट एसेट्स टू द क्रेडिटर. ठीक है, ही इज नॉट देयर टू रिप्रेजेंट द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड पर्सन या एस्टेट ऑफ द डेप्टर. वो उसको रिप्रेजेंट नहीं करता. वो ही इज अपॉइंटेड टू डिस्ट्रीब्यूट अ बैंकरप्ट एसेट्स टू द क्रेडिटर. तो ऐसे में उसकी ड्यूटीज अलग हैं. ही डज नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव. सिमिलरली, रिसीवर इज ऑल्सो एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट and is appointed by the court to just supervise the property and do certain other tasks as it's required. जैसा कि ऑर्डर 40 में लिखा है, उसमें पर्पस दिया हुआ कि क्या किन किन सिचुएशन में रिसीवर आप अपॉइंट कर सकते हैं. तो वो जो है रिसीवर का जो नेचर होता है, ही इज अपॉइंटेड एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट. वो कोर्ट की अथॉरिटी रिप्रेजेंट कर रहा होता है. ही इज नॉट देयर टू रिप्रेजेंट द डिसीज पर्सन. ठीक है, दैट इज व्हाई दीज पर्सन्स आर नॉट ट्रीटेड एज व्हाट? एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव. ठीक, what are legal representative? First, your administrators, executors, Hindu copassners, reversioners, residuary legatees, etc. ठीक, but trespasser is not a legal representative because it does not intermeddle with the intention of representing the estate of the deceased person. For the similar reasoning, executed decent tort, succeeding trustee, official assignee or receiver is also not a legal representative. ठीक है, because they are not representing the estate of the deceased person
ठीक है, दैट इज वाई दे आर केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ध्यान रखिएगा, ये जो टर्म्स है ना, इनका एक डेफिनेट स्कोप है, एंड डू नॉट, even though it is very wide, do not construe it to be more bigger than it actually is. I hope you understand ki why the official assignee receiver executed deeds untaught, a trespasser or a succeeding trustee is not treated as a legal representative. इसीलिए नहीं ट्रीट होते because he does not intermeddle with the intention of representing the estate of the deceased person. ये जितने भी लोग हैं, जैसे ऑफिशियल असाइनी, रिसीवर, ट्रस्टी हैं, इनकी अपनी अलग अलग ड्यूटीज होती हैं एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टैट्यूट, और इनका जो नेचर ऑफ होल्डिंग द एस्टेट है वो एकदम अलग होता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। नाउ वी कम टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 11, सॉरी सबसेक्शन 12, मीन प्रॉफिट्स। मीन प्रॉफिट्स ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स दोज प्रॉफिट्स which the person in wrongful possession of such property actually received or might with ordinary diligence have received therefrom, together with interest on such profit, but shall not include profit due to improvements made by the person in wrongful possession. ठीक है, तो बस डेफिनेशन का मेन ध्यान रखिएगा, फिर मैं जरा मेन चीज़ों पे आता हूँ इसकी। अब देखिए, मीन प्रॉफिट्स का ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत सिंपल है। हर पर्सन के पास राइट है अपनी प्रॉपर्टी पोजेस करने का, और जब कोई दूसरा पर्सन उसको डिप्राइव कर देता है ऑफ द राइट टू पोजेस हिज ओन प्रॉपर्टी, देन सच पर्सन जिसको डिप्राइव किया गया है, ही इज नॉट ओनली इंटाइटल्ड टू द रेस्टोरेशन ऑफ द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, बट ऑल्सो फॉर द डैमेजेस फॉर रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी बाय दैट पर्सन। ठीक, सो मीन प्रॉफिट्स आर अ कंपनसेशन पेड टू द रियल ओनर by that person who has wrongfully possessed the property for a certain period of time. The object of awarding a decree for mean profit is to compensate the person who has been kept out of the possession and deprived of enjoyment of his own property even though he was entitled to possession thereof. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि मीन प्रॉफिट्स किसके खिलाफ क्लेम होते हैं। Mean profits are always claimed against the defendant. ठीक है, if a person who is in the wrongful possession of the property has been enjoying the benefits of the possession of that property, then he has to pay the mean profits to the rightful owner. ठीक है, और mean profits are in a nature of damages. एक और चीज ध्यान रखिएगा कि मीन प्रॉफिट्स कैन ओनली बी क्लेम्ड विद रिगार्ड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, नॉट मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के ही कंटेक्स्ट में आप मीन प्रॉफिट्स क्लेम कर सकते हैं। ये मूवेबल प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में मीन प्रॉफिट्स का टर्म यूज नहीं होता, हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में यूज होगा। सो जनरली अ पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन एंड एंजॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लायबल फॉर द मीन प्रॉफिट्स। ठीक है, decree of mean profits can be passed against a trespasser or against a person against whom a decree for possession has been passed, or against a mortgager in possession of a mortgage property after decree for foreclosure has been passed against him, or against a mortgager or against a mortgagee in possession of the property after a decree of redemption is passed, or against a tenant holding over at will after notice to quit has been served upon him. तो ऐसी सिचुएशन में जब लीगल राइट टू पोजेस अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हैज एक्सपायर्ड एंड येट द डिफेंडेंट कंटिन्यूज टू होल्ड दैट प्रॉपर्टी, देन मीन प्रॉफिट्स कैन बी क्लेम्ड अगेंस्ट हिम। ठीक है, और प्रॉपर्टी का जो एक्सप्रेशन मैं यूज कर रहा हूँ ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में यूज कर रहा हूँ, मूवेबल प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में नहीं। ऑलवेज रिमेंबर, मीन प्रॉफिट्स हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी के ही कंटेक्स्ट में ग्रांट होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए एक प्रॉपर्टी पे एक से ज़्यादा ट्रेसपासर हैं, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी में एक से ज़्यादा ट्रेसपासर हैं। मान लीजिए आपका कोई घर है, उस पर 10 लोगों ने कब्जा कर लिया, ठीक, और आपने फिर सूट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन इंस्टीट्यूट किया कोर्ट में, सिविल कोर्ट में। तो अब आपको मीन प्रॉफिट क्लेम करना है, तो इन 10 के 10 से आप मीन प्रॉफिट क्लेम कर सकते हैं, आइदर जॉइंटली और सेवरली।
ठीक है। तो इस सिचुएशन में जितने भी ट्रेसपासर हैं जो आपकी प्रॉपर्टी को इलीगली ऑक्यूपाई किए हुए हैं, यू कैन क्लेम मीन प्रॉफिट्स फ्रॉम देम अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉफिट्स। ये सारी चीज़ें आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मीन प्रॉफिट्स आर इन द नेचर ऑफ डैमेजेस, तो कोर्ट मीन प्रॉफिट्स को मोल्ड कर सकता है अकॉर्डिंग टू द जस्टिस ऑफ द केस। तो उसका कोई कट एंड राइट फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, कट एंड राइट फॉर्मूला नहीं है। पर यूजुअली कुछ प्रिंसिपल्स डिटरमाइन किए जाते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ मीन प्रॉफिट्स। पहला, कि क्या डिफेंडेंट वो इज इन द पोजेशन ऑफ रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, उसने उस प्रॉपर्टी से कोई प्रॉफिट ऑब्टेन किया। सेकेंडली, when did he restore the property to the original owner when the decree was passed, and lastly कि डिक्री की किस यूज पे डिक्री होल्डर उस प्रॉपर्टी को रखता, ठीक है। अब उसके लिए ये भी देखा जाएगा कि प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है, कि लेट अस सपोज प्रॉपर्टी एक ऐसे एरिया में सिचुएटेड है जहाँ पे वो यूजुअली रेंट पे लेट आउट की जाती है, तो मीन प्रॉफिट्स उस पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए वो प्रॉपर्टी जिसको रॉन्गफुली ऑब्टेन किया गया था वो एक एग्रीकल्चरल लैंड है, तो उस लैंड पे कौन सा क्रॉप सो किया जाता या उसका क्या एक एवरेज यूज किया जाता, उसके हिसाब से मीन प्रॉफिट का कैलकुलेशन होगा। तो क्या प्रिंसिपल्स हैं? फर्स्ट, नो प्रॉफिट बाय द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन। सेकेंडली, restoration of the status before disposition of the decree holder, and third, use to which a decree holder would have put the property if he was himself in possession, ठीक है। अब एक और टेस्ट है in order to ascertain the mean profit, वो ये है कि what the defendant could have gained or might have reasonably gained with ordinary prudence while being in such a wrongful possession, ठीक है। what the defendant gained मतलब एक्चुअली में उसने क्या गेन किया, और दूसरा might have reasonably with ordinary prudence could have gained by such wrongful possession। अब मीन प्रॉफिट्स के कंटेक्स्ट में मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए उस पे लूसी कोचुअरीद वर्सेस पी मरियप्पा गौंदर का केस सबसे अच्छा है, ठीक है। इट वाज डिसाइडेड ऑन 7 फरवरी 1979। इट इज़ अ लोकस क्लासिकस ऑन दिस पॉइंट। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एग्जाम के पर्पज से आपको सिर्फ बेयर एक्ट लेवल पे ये टर्म्स ध्यान में रखने हैं, पर ये टर्म्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द सीपीसी, ठीक है। दैट इज़ व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दीज टर्म्स। अपनी बेयर एक्ट में मीन प्रॉफिट्स के बगल में ऑर्डर 20 रूल 12 सी लिख लीजिएगा, ठीक है, ब्रैकेट्स में, उसी के कंटेक्स्ट के साथ पढ़ा जाता है। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अ डिक्री अंडर ऑर्डर 20 रूल 12 ऑफ द सीपीसी विच डायरेक्ट्स एन इंक्वायरी इनटू द मीन प्रॉफिट must be construed as a decree directing the inquiry in conformity with the requirements of the rule 12(1)(c), so that the decree holder is not entitled to the mean profits for a period commencing from the date of institution of the suit, extending beyond 3 years from the date of the preliminary decree. In other words, preliminary decree के पास होने के 3 साल के बाद you are not entitled to mean profits, ठीक है। क्यों? You should have put that property into the execution, मतलब सॉरी, you should have put that decree into execution। आपको एग्जीक्यूशन के लिए लगा देना चाहिए, ये नहीं कि आपने डिक्री ले लिया और फिर आप बैठ गए। नो, इमीडिएटली उसे एग्जीक्यूशन के लिए लगाइए। ये क्लॉज इसलिए है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि डिक्री होल्डर मीन प्रॉफिट्स कलेक्ट होने दे, इंटरेस्ट कलेक्ट होने दे, फिर इवेंचुअली वो इतना बड़ा सम बन जाए कि जो डिफेंडेंट है उसे कभी पे ही ना कर पाए। दैट इज़ वाई यहाँ पे ये है कि आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री होल्डर इज नॉट एंटाइटल्ड टू मीन प्रॉफिट्स। अब जो रूल 12 का सी है वो ये बताता है कि जो इंक्वायरी होगी रेंट या मीन प्रॉफिट्स की, वो कैलकुलेट होगी फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट अंटिल द डिलीवरी ऑफ द पोजेशन ऑफ द डिक्री होल्डर। मतलब जब डिक्री होल्डर को प्रॉपर्टी दे दी गई तो ऑब्वियसली उस डेट के बाद से मीन प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट होंगे। सेकेंडली, द रिलिंक्विशमेंट ऑफ द पोजेशन बाय द जजमेंट डेप्टर विद नोटिस टू द डिक्री होल्डर थ्रू द कोर्ट, मतलब कि कोर्ट के थ्रू एक नोटिस दिलवा दे डिक्री होल्डर को कि उसने उस प्रॉपर्टी को छोड़ दिया है, ठीक है। और थर्ड इज जब 3 साल एक्सपायर कर जाए, उसमें 3 साल का एक्सपायरी वाला जो बात है उसको लोग भूल जाते हैं।
तो दैट इज वाई हमेशा रूल 12 के कंटेक्स्ट में मीन प्रॉफिट्स को कंस्ट्रू करिएगा, स्पेशली रूल 12 सब रूल 1 क्लॉज सी, ठीक है, इसी के पॉइंट पे कंस्ट्रू करिएगा। ध्यान रखिए सीपीसी इज ऑल अबाउट इंटरलिंकिंग, इंटरलिंक करना सीख गए, सीपीसी विल इजीली क्रैक। कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ जानने वाली बात है, जान गए तो आ जाएगा, नहीं जानेंगे तो नहीं पता चलेगा, ठीक है। वैसे भी मीन प्रॉफिट्स पे मैंने आपको थोड़े एडवांस पॉइंट बता दिए। एक इलस्ट्रेशन और मीन प्रॉफिट का देता हूं आपको, कि मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी है आपकी मुखर्जी नगर पे है दिल्ली में। अब आप जानते हैं मुखर्जी नगर कोचिंग्स के लिए बहुत फेमस है, वहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा अच्छा रेंट देते हैं। अब आपका एक बहुत बड़ा सा घर है, ठीक है, उसमें 4 फ्लोर हैं। अब 4 लोगों ने कब्जा कर लिया आपके घर पे। अब आप उस घर को रेंट पे दे सकते थे, पर फ्लोर आपको 15 से 20 हज़ार कलेक्ट हो जाता मुखर्जी नगर से, पर आपको अब वो नहीं मिल पा रहा। तो जो मीन प्रॉफिट जो कैलकुलेट होंगे वो इस बेसिस पे होंगे कि अगर आपने 4 फ्लोर रेंट पे दे दी होती या 3 फ्लोर रेंट पे दे दी होती तो आपकी इनकम इतने सालों में कितनी होती, ठीक है। वो मीन प्रॉफिट उसके बेसिस पे कैलकुलेट होंगे, क्योंकि वो एरिया यूजुअली रेंट के लिए होता है, आप अकेले हैं, आप उसे रेंट पे देते हैं, आपका इंटेंशन था। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट फिर वहां पे जो यूजुअल रेट ऑफ रेंट है उसके बेसिस पे कैलकुलेट करेगा मीन प्रॉफिट, ठीक है, उस एरिया में। पर अगर वही जो प्रॉपर्टी जो होल्ड है वो एग्रीकल्चरल लैंड है तो वहां पे सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। और ध्यान रखिएगा एवरेज रेंट का कोर्ट ध्यान में रखिएगा, ये नहीं कि मैक्सिमम रेंट क्या है, वो देखेगा कि उस लोकेलिटी में एवरेज रेंट क्या प्रेवलेंट है और उसके बेसिस पे वो कैलकुलेट करेगा कि मीन प्रॉफिट कितने बनते हैं। उसमें वो ये नहीं कि मैक्सिमम पॉसिबल रेंट क्या हो सकता है, उससे नहीं करेगा, एक एवरेज एस्टिमेट लेगा। वैसे ही अगर मान लीजिए एग्रीकल्चरल लैंड है और वहाँ पे जो क्रॉप्स हैं, मान लीजिए डिफेंडेंट ने वहाँ पे बार्ली उगाई है, लेट अस सपोज, लेकिन एक प्रूडेंट एग्रीकल्चरिस्ट वहाँ पे टोबैको उगाता या शुगर केन उगाता या कोई और प्रॉफिटेबल क्रॉप उगाता, तो ऐसी सिचुएशन में जो कोर्ट है वो उस प्रूडेंट एग्रीकल्चरिस्ट के हिसाब से चलेगा जो मोर प्रॉफिटेबल क्रॉप उगाता, ठीक है। अब आप एक चीज जानते हैं कि मीन प्रॉफिट पे भी इंटरेस्ट लिए जा सकते हैं। सो इंटरेस्ट के लिए यू हैव टू लुक एट इट इन कंटेक्स्ट ऑफ सेक्शन 34। तो मीन प्रॉफिट्स जो हैं उनमें सेक्शन 34 के कंटेक्स्ट में एक इनबिल्ट लिमिटेशन है, दैट इज दैट दे एज अ जनरल रूल वुड नॉट बी अवॉर्डेड एट एनी रेट एट द एक्सेस ऑफ 6% पर एनम। अब ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने भी रियलाइज की थी इन द केस ऑफ महंत नारायण दास जी वर्सेस बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। 10 सितंबर 1964 को ये केस डिसाइड हुआ था और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन दैट द सेट रेट शैल नॉट एक्सीड 6% पर एनम, ठीक है। तो ये आपका मोटा मोटा आज के लिए जनरल टर्म्स हो गए जो मुझे इन्फॉर्म करने थे आपको। सो दैट इज इट फॉर टुडे। कल हम लोग सीपीसी के दूसरे कंसेप्चुअल पॉइंट्स डील करेंगे मेन, और इन सारे पॉइंट्स को जो मैंने आज आपको बताया है आपको इस पर स्ट्रेस नहीं लेनी है, बस जस्ट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द एसेंस ऑफ द बेयर एक्ट। कि मैंने आपको जितना भी एक्सप्लेन किया है वो आपको उन टर्म्स की एसेंस समझाने के लिए एक्सप्लेन किया है, so that you can understand that why the particular word has been used and in what context that particular word has been used। ये बहुत एसेंशियल है आपको अभी समझने के लिए, ठीक है। अभी इंटरलिंकिंग और बाकी चीज़ों को लेके कंफ्यूज मत होइएगा, बस एक शॉर्ट सा मेंटल नोट अपने लिए बना लीजिए कि हाँ ऐसा ऐसा है। अभी जस्ट गो विद द फ्लो, अभी बस जो चीज़ें आज समझाई गई हैं उसको समझने पे मेन ध्यान दीजिएगा। ऑलराइट, सो आई विल सी यू टुमारो।